Friends, welcome back to the lecture series of judicial examination. Today we are going to discuss section 141 to section 143 of Indian Evidence Act, which is a part and parcel of chapter of examination of witnesses. So section 141 to 143 specifically dealing with the concept of leading question. Okay, what will be the leading question? What is mean by leading question? When it may be asked and when it may not be asked, we will discuss under this lecture. So leading question से related सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा नहीं जा सकता, सब हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। So let's start the topic. Examination of witnesses, leading question, which is discussed under section 141 to 143. So what is mean by leading question? According to Bentham, a leading question is a question that indicates to the witness the real or supposed fact which the examiner expects or desires to have confirmed with the witness. So leading question is a question that indicates to the witness a real or supposed fact. ऐसा क्वेश्चन को हम लीडिंग क्वेश्चन कहेंगे कि जो पर्सन को अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मैं वो पूछने में क्वेश्चन में ही आपको इंडिकेट कर रहा हूं और आपको इशारा कर रहा हूं कि इसका आंसर ये है, आपको ये कहना है। विच द एग्जामिनर एक्सपेक्ट और डिजायर टू हैव कंफर्म विद द विटनेस। मैं क्वेश्चन तो कर रहा हूं और मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये कहें। अगर मेरा क्वेश्चन इस तरीके का है, that question will be a leading question. According to Stephen, leading question is one which either suggests the answer desired or assume the existence of disputed fact as to which the witness is to testify. तो leading question क्या है? Which suggests the answer desired. मैं लीडिंग क्वेश्चन ऐसा कर रहा हूं कि जिसमें मुझे आंसर क्या चाहिए वो सजेस्ट कर रहा हूं और assume the existence of disputed fact as to which the witness is to testify. और एक assumption के जरिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि हाँ यही आंसर आपके तरफ से आएगा। समझ रहे हो? तो ऐसा अगर क्वेश्चन मेरा है that will be a leading question. According to Lord Alan Burrow, a leading question is a question framed in such a manner that it throws a hint as to or suggests directly or indirectly the answer which the examiner desired to elicit from the witnesses. तो ऐसा क्वेश्चन कि जो हिंट दे रहा है कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सजेस्ट कर रहा है आपको आंसर, तो ऐसा क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नॉट वर्क विथ मिस्टर एक्स फॉर 5 years? अब क्वेश्चन डायरेक्टली है कि आपने मिस्टर एक्स के साथ 5 साल काम नहीं किया, तो ये डायरेक्टली आपको मैं आंसर सजेस्ट कर रहा हूं, आपका आंसर हाँ या ना में आएगा। इट मींस आई एम सजेस्टिंग यू द आंसर। इज योर नेम सो एंड सो? क्या आपका नाम ये नहीं है? दिस इज द सजेशन ऑफ आंसर। दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन। डिड यू नॉट सी द अक्यूज्ड लीव द प्रीमाइस एट 8 PM? क्या आपने अक्यूज्ड को 8 बजे घर छोड़ते हुए नहीं देखा? This is a leading question which suggesting the answer. So all are leading question. ये सब के सब leading question रहेंगे. So the original provision of leading question is mentioned under section 141. So according to section 141, any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expect to receive is called a leading question. So what is leading question? Any question which used to suggest answer. ऐसा क्वेश्चन जो आंसर सजेस्ट कर रहा है विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट टू रिसीव। मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन कर रहा हूं, इस तरीके से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैं आंसर ऐसा सजेस्ट कर रहा हूं आपको कि मैं जो चाहता हूं आपसे। समझ रहे हो? एंड दैट इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन. In the previous example, it is clear that the question itself contains the answer and the examiner is merely trying to confirm those answers with the witness and are thus leading question. So we have discussed the example and it is clear that question itself contains the answer. क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। मैं अब कह रहा हूं आपका नाम गणेश नहीं है, तो ये गणेश आपका नाम है, ये क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है ना? और मैं सिर्फ वो उसको कंफर्म करना चाह रहा हूं। मैं क्या पूछ रहा हूं? आपका नाम गणेश नहीं है, तो यू हैव टू कंफर्म ओनली। आई एम सजेस्टिंग यू द आंसर। मैं आपको आंसर सजेस्ट कर रहा हूं, आप कहेंगे हाँ मेरा नाम गणेश है। दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन.
सेक्शन 141 पे महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चन मींस क्वेश्चन विच डज नॉट सजेस्ट द आंसर, क्वेश्चन विच सजेस्ट द आंसर, क्वेश्चन विच लीड टू डिस्कवरी ऑफ एनी फैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विल बी अ लीडिंग क्वेश्चन, सो द ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट वन। सेक्शन 142 व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, कब लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं? सो लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड to by the adverse party be asked in an examination in chief or in re-examination except with the permission of the court. So no leading question can be asked in examination in chief or cross-examination, re-examination if objected by the opposite party. No leading question can be asked in examination in chief or in re-examination if objected by द एडवर्स पार्टी। अगर अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन लेती है तो उस सिचुएशन में एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अगर लीडिंग क्वेश्चन पूछना है एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में तो उस सिचुएशन में कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड रहेगी। द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर्स विद इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड और विच हैव इन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव। सो व्हेन कोर्ट कैन परमिट अ लीडिंग क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन, सपोज इफ एनी फैक्ट विच इज अनडिस्प्यूटेड वन, एखादा फैक्ट ऐसा है कि जिसका पे डिस्प्यूट ही नहीं, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, तो वो फैक्ट के लिए कोर्ट परमिट कर सकता है एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए। इफ एनी फैक्ट विच इज ऑफ इंट्रोडक्टरी नेचर, एक आधा फैक्ट जो है इंट्रोडक्टरी नेचर का है, तो ऐसे फैक्ट से रिलेटेड भी लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोर्ट परमिशन दे सकता है एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई फैक्ट सफिशिएंटली प्रूव हो चुका है, एक आधा फैक्ट प्रूव हो चुका है, तो ऐसे फैक्ट से रिलेटेड भी कोर्ट परमिशन देगा एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछने की। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the prosecutor ought not to be allowed to frame question in such a manner which the witness may answer in yes or no, so as to enable him to elicit such answer which he expects or desires. The Supreme Court clearly mentioned that the prosecutor is not allowed to frame such a question in which the answer will be in the form of yes or no. समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया कि प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूटर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम ना करे एग्जामिनेशन इन चीफ में कि जिसका आंसर यस और नो में आए। अब जब यस और नो में आंसर आएगा तो जैसा उसको आंसर चाहिए वो आंसर मिलने के चांसेस बहुत सारे होंगे। वर्की जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इस पर्टिकुलर केस में ये पूछा हेल्ड किया गया है। इट ऑल्सो हेल्ड दैट अलाउिंग सच लीडिंग क्वेश्चन वुड ऑफेंड द राइट ऑफ अक्यूज to fair trial enshrined in Article 21 of Constitution of India. If such type of questions are allowed in examination in chief, then definitely it will affect the concept of fair trial which is given under Article 21 of Indian Constitution. तो अगर प्रोसिक्यूटर को एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ किया जाएगा तो ये सेक्शन आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के इसका वायलेशन कहलाएगा। सेक्शन 143 when they may be asked, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछ सकते हैं? लीडिंग क्वेश्चन may be asked in क्रॉस एग्जामिनेशन, तो लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। द सेक्शन ऑलवेज परमिट लीडिंग क्वेश्चन बीइंग पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन। द रीजन इज दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू टेस्ट द वेरासिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस एंड टू एक्सपोज any inaccuracy that exists in the testimony of the witness. So why leading question is allowed in a cross examination? The very purpose of cross examination is to test the veracity and to test the credibility of that particular witness and to expose any inaccuracy that exists in the testimony of the witness. तो cross examination का एम ही होता है कि जो विटनेस ने एग्जामिनेशन चीफ में कहा वो सही कहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन अलाउ किया गया है। मतलब जो उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में कहा उसकी इनएक्यूरेसी
कि कितना इनएक्यूरेट कहा उसने, ये तलाशने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन अलाउ किए गए हैं। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो उस तरीके से उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में सच्चाई बाहर आ सकती है, उसकी क्रेडिबिलिटी बाहर आ सकती है, इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन अलाउ किए जाते हैं। It is so because the party which calls the witness always tell him the fact in advance which the witness is likely to ask इन द कोर्ट। तो जब कभी पार्टी, अगर मैं प्रोसिक्यूशन हूं, मैं मेरे विटनेस को बुलाऊंगा तो इन एडवांस मैं उसको पूरे फैक्ट समझा दूंगा कि ऐसा ऐसा है केस, तुम्हें ये बोलना है। समझ रहे हो? तो एग्जामिनेशन इन चीफ में तो वो तोते की तरह बोलेगा, बट क्रॉस एग्जामिनेशन जब होगा, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, उसको लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस तरीके से उसकी क्रेडिबिलिटी चेक होगी कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ में उसने कहा है वो सच कहा है या झूठ कहा है। तो इसीलिए लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में अलाउ किए गए हैं। एज अ रिजल्ट द विटनेस वुड रिमेन होस्टाइल टू द कॉज ऑफ द एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिनिंग हिम एंड विल बी बायस्ड इन फेवर ऑफ द पार्टी कॉलिंग हिम। तो कभी कभी क्या होगा कि जो पार्टी ने विटनेस को बुलाया वही पार्टी का फेवर करेगी, अपोजिट पार्टी को कोई सपोर्ट करती नहीं। समझ रहे हो? तो इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए उसको उसकी क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है। 2019 जुडिशियल एग्जामिनेशन, महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चन आर नॉट परमिसिबल इन क्रॉस एग्जामिनेशन इन एग्जामिनेशन इन चीफ विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। A is correct and B is incorrect. A is incorrect and B is correct. Both are correct, both are incorrect. तो अगर हम देखें तो यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछा जा सकता है लीडिंग क्वेश्चन। तो वहां पर अगर हम देखें क्वेश्चन में तो लीडिंग क्वेश्चन आर नॉट परमिसिबल बोला गया है। परमिसिबल किसमें नहीं है? क्रॉस एग्जामिनेशन में तो परमिसिबल है, तो काय में परमिसिबल नहीं है? इन एग्जामिनेशन इन चीफ। तो ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट वन। ए इज इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट। 2019 उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हेन कैन प्रोसिक्यूशन बी अलाउड टू आस्क लीडिंग क्वेश्चन टू इट्स ओन विटनेस इन एग्जामिनेशन इन चीफ, इन री एग्जामिनेशन, व्हेन द विटनेस इज डिक्लेयर्ड होस्टाइल इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो लीडिंग क्वेश्चन अपने ही विटनेस को कब कर सकता है पर्सन? व्हेन द विटनेस इज डिक्लेयर्ड होस्टाइल। अगर विटनेस होस्टाइल डिक्लेयर होता है कि विटनेस ने झूठ बोल रहा है, अगर ये डिक्लेयर होता है, उस सिचुएशन में अपने ही विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है वो पार्टी। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। So this is the concept of leading question which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you. Thank you very much.